हाय गाइस। तो हम देखेंगे जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था उसका कंटिन्यू करेंगे। आई हैव कंप्लीटेड सम ऑफ द स्मॉलर फंक्शंस। आई विल जस्ट एक्सप्लेन अगेन कि एग्जैक्टली हमने क्या सोचा था लास्ट टाइम, सोल्यूशन क्या था। बेसिकली पेलोड डॉट डी को मैं एक टेबल में बना दूंगा। पेलोड डॉट एस भी एक टेबल होगा ना। एस विल बी यहाँ पर टाइम होगा, राइट। दिस विल बी द टाइम एक्सेस, दिस विल ऑल्सो बी द टाइम एक्सेस, दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी द टाइम एक्सेस। देन दिस इज गोइंग टू बी द गैसेस एक्सेस, labels. Okay, so I will show you what kind of data we are working with. Const data points is data points of array d t d dot now CO2, let's say 4, O3, let's say 3, S could be something like location, Ahmedabad. It could be 3, this could be 2, and so on. For some, this might not exist, and for others, it might be possible कि यहाँ पर SO2 आ जाए. We are no longer detecting O3, now we are detecting SO2, right? So this is the kind of data we are working with. हमारे पास ऐसा JSON होगा और हम उसको कंप्रेस करेंगे ऐसे टाइप के फॉर्मेट में. We will keep two tables. So payload D table will look something like this. TS gases, right? So we can do something like CO2, then O3, then SO2, stuff like this, and then it will be 4, 3, like empty it is going to be. You get the point. This is the kind of table we will have. This would be T1, T2, and so on. So this one will be T1, T2, and so on. We will also maintain, this is also possible. See, location will mostly not change, but for whatever reason from here onwards, the location has changed to Sura. We will also have another table. This will only contain location. For most of the time, it always had Ahmedabad in it. Ahmedabad, 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 and suddenly it had Surat here. Surat. This is the kind of table we have. This is the kind of table we will have. Okay. Now imagine, I already know कि जो S वाली column है, which is this one, S table जो है payload S, उसमें जो values है वो repeating होगी. They are not going to change that much. So what I'm going to do is S values, and I'm going to store here those values. Ahmedabad, all possible unique values. And instead of putting this over here, I will put something like 0, 0, 0, 0, and 1. Let's say for whatever reason, last one did not have any values. So what we will do, instead of putting 0, we can put 1, 1, 1, 1, and here 2. And for the value, जिसके अंदर ये कॉलम एम्प्टी रहने वाली है, उधर हम 0 रख देंगे. ये बाद में सोचते हैं इसके बारे में. अभी के लिए समझ लो कि ऐसा ऐसा टाइप का स्कीमा अपन स्टोर करेंगे, राइट. T3. This is our table goal. This is how our table is going to be. We will convert this JSON into this kind of table. Now अभी यहाँ पर तुम देख रहे हो कि दिस इज एन एरे ऑफ एरे. दिस डज नॉट सॉल्व एनीथिंग फॉर अस बिकॉज यहाँ पर भी बिहाइंड द सीन वही सब चीजें होती है. वी आर ट्राइंग टू एक्सेस द मेमोरी, और बेसिकली रैंडम एक्सेस मेमोरी हो रही है क्योंकि ये पीस ऑफ मेमोरी कहीं और एलोकेटेड है, ये एरे कहीं और एलोकेटेड है. दिस इज नॉट, दिस होल थिंग इज नॉट एलोकेटेड इन अ सिंगल लाइन ऑफ मेमोरी. दिस इज एलोकेटेड एट डिफरेंट प्लेसेस, राइट. जो हमने कल बात की थी वही है. सो व्हाट वी विल डू इंस्टेड इज कि इसी चीज को पेलोड बफर डी अपन ऐसे लिखेगा. You get the idea, right? We will write it in this way. The first three index will be this, then the next three index will be this, next three values will be this, next three values will be this, next three values will be this. And the same thing I'm going to do for buffer S also. And instead of using arrays, we are going to use this and unsigned int. And the amazing thing is कि यहाँ पर जो T1, T2, T3 ये सब जो हो गए, those are going to be the same order that I'm also going to have on this table as well. So I can also put a T buffer buff that will contain just T1, T2, T3, and so on. And this is also going to be unsigned int 32 array, right? So now let me just tell you how we are going to access some I comma j value. I comma j. How are we going to access this? तो अगर मुझे I comma j सेल चाहिए, so I have to skip this many rows first of all. I have to skip this many cells. How I'm going to skip all of the cells? So the formula for this is, let's say I am at the ith row.
This is ith row in jth column. Okay, this is ith row in jth column. I have to skip this many rows. So how am I going to do this? It's just simple. I times guesses dot length, or else I times number of columns. This is how many cells there are here. यहाँ पर इतने cells है. We have this many cells. Then I also have to skip this many cells in this ith row also. So this is just j cells. तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा? I times number of column plus j. This is our I comma j cell. So to access, if I want to access this particular column, this particular cell here, what I'm going to do is this is 0, 1, 2. Great. And it is 0, 1, 2. Great. So it is at 2, comma 1. I have three columns here. So my formula is going to be 2 times 3 plus 1. What is it going to be? 3, 4, 6, 7. 7. Correct. So 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. That is the exact column that we were trying to get. Exact cell that we were trying to get. Right? So we will maintain three kind of arrays. First will be the time array. So idea ये है कि ये जो array है, this could have 1 million entries. 1 million entries. And we are trying to solve for that. It could have 1 million, 2 million, it can be a very big data set. And we want to optimize our JavaScript for that. Instead of storing everything in a JSON, which this is, we are going to store in float 32 array, unsigned int 32 array, and unsigned int 32 array. This will make our life very easy. Let's see, हम पहले tools देख लेते हैं कि कौन से tools हम बना रहे हैं. Okay. So as we said, हम time का array बनाएंगे, right? तो instead of trying to access a data point using time, we will first find out what is the index of time of that time. So वो time का row number क्या है? Ti would be our row number. Then parameter Gi would be our guesses parameter. Guesses column number. Ti is our row number and Gi would be our guess वाले table में column number, right? तो यहाँ पर कितने columns है? We are storing that. कौन से labels है? We are storing that. So this one would look something like CO2, O3, SO2, and so on. This one could look like location, sim, or whatever. Sometimes this would look like right now it is 11 July 10 10. Then the next would be 11 July 10 15, 11 July 10 20, and so on. Right now for labels, label value array, right? So as we discussed कि location sim bind throughout all these data points ये वाली values change नहीं हो रही है, ये वाली values sensors में से आती है, तो this constantly gets changed. That's what data point is supposed to mean, but ये change नहीं होता बहुत. So we can compress this also कि इनकी जितनी unique possible values है we will store it over here values. So this could be like AHA, MEDA, BAD, Ahmedabad, Surat, or YG 19 P0001, and so on. It could be anything. Whatever possible values this could have, उसका लिस्ट है यहाँ पर, उसका लिस्ट अपन मेंटेन कर रहे हैं. हम यहाँ पर रिवर्स मैपिंग कर रहे हैं कि अहमदाबाद का इंडेक्स क्या है. व्हाट इज द इंडेक्स ऑफ अहमदाबाद इन दिस पर्टिकुलर एरे. व्हाट इज द सूरत इंडेक्स इन दिस पर्टिकुलर एरे, राइट? व्हाट इट इज, उसका बस अपन मैपिंग रख रहे हैं यहाँ पर. सो दिस इज जस्ट रिडंडेंसी. ये हम सिर्फ रन टाइम ऑप्टिमाइजेशन के लिए करते हैं. वी कुड आल्सो रिमूव दिस इफ वी डोंट वांट इट. कंसंट्रेशन, ये हमारा कंटेंट होगा टेबल का, ये हमारा कंटेंट होगा फर्स्ट टेबल का, राइट? तो वी ऑलरेडी डिस्कस्ड हाउ दिस इज गोइंग टू लुक लाइक. सेम चीज वैल्यू के लिए यहाँ पर हम वैल्यूज नहीं स्टोर करेंगे, जबकि वैल्यूज का इंडेक्स स्टोर करेगा. वैल्यूज हम यहाँ पर स्टोर करेगा और उनका इंडेक्स, करस्पॉन्डिंग इंडेक्स हम यहाँ पर स्टोर करेगा, which is going to be this one. Great. Now this is just the how much capacity does our current state have. Great. हम तीन तरीके से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. या तो if somebody can give us all the possible memory optimized data points, हमारा memory optimized data point ऐसा दिखता है. We have already shown the interface. लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि this is how many APIs we would need to interact with list of data points. If we have this much, we don't need JSONs. बेसिकली JSON में हम इतनी ही चीजें करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करता. तो ऐसी जितनी JSON है सबको अगर तुम्हें मर्ज कर देना है, एक के अंदर फ्लैटन आउट कर देना है, तो फिर दिस इज लाइक अ मर्जर API. इट कुड टेक मैनी नंबर ऑफ दिस क्लास एंड मर्ज ऑल ऑफ देम फ्रॉम JSON. हमने अभी देखा जो डेटा पॉइंट है उसका जो लिस्ट ऑफ JSON है वो हम पास करेंगे तो उसको कंप्रेस करके ये फॉर्मेट में लाके दे देगा ये मिनी बफर JSON. दिस इज फॉर अ फ्यूचर टास्क. हम इसी को we will figure out a way to create a buffer from this. So we will try to create two APIs. Two JSON तो हम बना ही देंगे, from JSON भी हमने बना दिया, but we will also try to figure out a way to make this API which is to buffer and from buffer. We will try to convert this into buffer. So जब हम front end को भेज रहे हैं हम डायरेक्ट बफर ही भेज दे in a very compressed form. Instead of sending this huge JSON, we have to convert it like 1 million data points है तो मुझे इतना बड़ा JSON convert करना पड़ेगा, जिससे that will be a very big IO going on, right? तो उसको कम करने के लिए I will be trying to implement this. अगर किसी को empty create करना है, empty state create करना है इसका, so they can pass certain number of timestamps
और दे कैन पास हाउ मच कैपेसिटी डू यू वांट इन टाइम. इफ दे नो अहेड ऑफ टाइम कि कितने गैसेस का मुझे टेबल बनाना है, दे कैन आल्सो पास द कैपेसिटी ऑफ द गैस. अदरवाइज यू जस्ट पास द एरे. सेम थिंग फॉर label version also, and we will just create a simple empty data point buffer that does not contain anything. It will just have it has कैपेसिटी टू होल्ड थिंग्स. सो हमको रीअलोकेट ना करनी पड़े. बेसिकली क्या होगा कि यहाँ पर हमने टाइम ये बना दिया, फॉर वट एवर रीजन हमें एक और नई टाइम ऐड करनी हो एंड वी डू नॉट हैव द स्पेस, वी विल हैव टू रिक्रिएट दिस होल थिंग. दैट इज वन ड्रॉबैक फॉर यूजिंग दिस ऑप्टिमाइज्ड लाइब्रेरी अनसाइंड इंट एंड फ्लोट 32 एरे. सो दिस डू नॉट वर्क लाइक योर टिपिकल एरेस जहाँ पर हर चीज़ें पॉइंटर से होती है. सो इट इज ईजियर फॉर यू टू पुश एंड पॉप थिंग्स. यहाँ पर साइज इज फिक्स्ड. यू प्री allocate how much memory you are going to use. So every time you want to change something, you have to recreate the whole thing, whole scenario. Idea is that most of the time nobody is going to try to alter the tables that much. If you are trying to alter the table, we will have to optimize it ahead of the time. कि तुम पहले you set up how many guesses you will need, you set up how many things you will need, and then we will try to create the data set. Okay, great. तो इतनी स्टैटिक प्रॉपर्टी से हम इसको क्रिएट कर सकते हैं, कोई भी नया इंस्टेंस बना सकते हैं इसका. ये सिंपल एपीआई है, कुछ नहीं है. गेट टाइम, गेट गैसेस, लेंथ, लेबल की लेंथ चाहिए. हमने टाइम में कितनी कैपेसिटी रखी हुई है, हाउ मच कैपेसिटी डू वी हैव इन टाइम, हाउ मच कैपेसिटी डू वी हैव इन गैसेस. तो कैपेसिटी, व्हाट डज कैपेसिटी मींस इज, आई विल जस्ट शो यू वंस. बेसिकली जब तुम इनिशियली ये पूरा स्ट्रक्चर बना रहे हो, व्हाट विल हैपन, यू विल हैव लेंथ ऑफ 0 0. Every time you're trying to insert a new TS, you will have to copy this to another buffer, but with an increased size. Then this time यहाँ पर ये एक एंट्री तो तुम रखोगे और एक नई एंट्री बनाओगे. नेक्स्ट टाइम यही चीज़ वापस करनी होगी, तो तुमको वापस कॉपी करना पड़ेगा. This is what will happen. So if you do not want to do this, what we can do is pre-allocate certain heap memory. कि इतनी मुझे मेमोरी चाहिए, even though I am only using this much, I can allocate ahead of time कि भाई मुझे इतनी मेमोरी चाहिए, एंड देन एक के बाद एक मैं सारे टाइम स्टैम्प्स डालूंगा. तो सिमिलरली इनिशियली तुम्हारा टेबल ऐसा दिखेगा, बट इंस्टेड ऑफ लेटिंग इट बी ऑफ दिस मच साइज, यू कैन प्री अलोकेटेड साइज कि मुझे इतना बड़ा टेबल चाहिए, इवन तो कुछ डेटा नहीं है, पूरा का पूरा टेबल 0 0 0 फील्ड है. दैट इज फाइन, मुझे इतना बड़ा टेबल चाहिए, दैट इज व्हाट आई वांट. एंड देन आफ्टरवर्ड्स यू कैन कीप एडिंग ऑल द थिंग्स दैट यू नीड टू ऐड. दैट्स द आइडिया. So that is what capacity looks like. So capacity is always going to be greater than or equal to length. लास्ट टाइम हमने देखा था कि कुछ एपीआईज हमने बनाई हुई है. आई विल जस्ट लाइक गो थ्रू दोस एपीआईज वंस अगेन. अगर किसी को वाई एक्सेस पे, अगर किसी को वाई एक्सेस पे इटरेट करना हो, then we can use this particular API. We can pass reverse boolean and it will help you go upwards or backwards. Very easy and very simple API. If you want time at a particular row, के ये वाले रो पे टाइम क्या है, what is the time at this particular ith row, this API can help you with that. What is the row number for a particular time, this API can help you with that. If I want to add a row, if I want to remove a row, this API can help you with that. If I want to freeze the row, the y-axis entirely, so if I want to completely freeze it, okay, no one can add a new row or no one can remove a new row, existing row, so this API will help us with that. Then if I want to iterate over this axis, x axis, और पेलोड के अंदर जो टेबल है उसके अंदर मुझे कॉलम्स पे इटरेट करना हो, यहाँ पर इटरेट करना हो मुझे इस डायरेक्शन में, सो दिस एपीआई विल हेल्प मी विद दैट, नॉट हियर दिस. तो ये एपीआई वहाँ पर मुझे हेल्प करेगा. यहाँ पर कुछ रिवर्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस है, अनऑर्डर्ड ही होगा. वी कैन नॉट इंश्योर एन ऑर्डर ओवर हियर, वी डोंट वांट टू, वी डोंट नीड इट आल्सो. देन गैसेस और गैस इंडेक्स, सेम वही चीज़ है कि कोई पर्टिकुलर कॉलम नंबर पे गैस क्या है और कोई गैस का कॉलम नंबर क्या है. सिंपल, इफ आई वांट टू ऐड अ कॉलम, रिमूव अ कॉलम, दिस कैन हेल्प मी विद दैट. फ्रीज ऑल द कॉलम्स, दिस कैन हेल्प मी विद दैट. सेम चीज़ बट लेबल वाले के अंदर, लेबल की कॉलम्स पे मुझे इटरेट करना हो, लेबल मुझे जानना हो, वो सब चीज़ें ये. सेम थिंग फ्रीज लेबल. नाउ गेट जीसन एट. सो अगर तुमको ith रो का, अगर तुमको ith रो का जीसन वर्जन चाहिए विच इज डेटा पॉइंट, this API can help you with that. You just pass which row you want to JSONify and it will help you JSONify that row. If you want to iterate over all the cells of ith row in the first table, तो अगर तुम्हें ये वाले टेबल में मुझे सारे सेल्स पे अगर इटरेट करना हो, दिस एपीआई हेल्प्स मी विद दैट. इफ यू पास इन द ओनली एग्जिस्टिंग फ्लैग, तो फिर जो जो सेल्स एम्प्टी है इट कैन स्कीप ओवर दैट. सेम थिंग बट ये वाले टेबल पे करनी हो तो फिर दिस एपीआई हेल्प्स विद दैट. ग्रेट. ओके. अभी इफ यू वांट टू गेट अ वैल्यू, इफ यू वांट टू गेट अ कंसंट्रेशन एट एनीवेयर, तो अगर तुमको डायरेक्ट ये वाला जो सेल है उसका कंसंट्रेशन चाहिए और राइट, तो फिर ये वाली एपीआई विल हेल्प यू विद दैट. उसका डायरेक्ट तुमको कंसंट्रेशन मिल जाएगा. सिमिलरली अगर तुमको सेट करना हो, डिलीट करना हो, उसको वापस एम्प्टी कर देना हो वो पर्टिकुलर सेल को, सेम चीज़ दूसरे वाले टेबल में भी करनी हो तुमको, ग्रैन्युअल कंट्रोल्स, दिस एपीआई विल हेल्प यू विद दैट. फाइनली तुमको ये सारी चीज़ों की लेंथ चाहिए कि इसकी लेंथ क्या है, इसकी लेंथ क्या है, all of those. If you want to convert the whole thing to JSON, if you want to convert this all data back to the JSON, helps with that. बफर जो मैंने बात करी कि if we want to convert in a more optimal way कि हम डायरेक्ट बफर ही स्ट्रीम कर देंगे फ्रंट एंड को, this is unnecessary. Alright. So I will just show you कि हमने कितनी जो छोटे बहुत फंक्शंस थे वो मैंने यूं ही बना दिए बिकॉज दोज वर नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट. तो हमने जो देखा उसके अकॉर्डिंग मैं सब तुम्हें समझा देता हूँ. तो जैसे कि टाइम एक्सेस पर तुम्हें इटरेट करना हो, विच इज दिस वन.
इफ यू वांट टू इटरेट ओवर टाइम एक्सेस, तो हम कैसे करेंगे? इट इज़ वेरी सिंपल। टाइम एरे के अंदर अपन लूपिंग करेंगे। इफ दे हैव पास द रिवर्स मुझे करना है तो फिर हम उल्टे से शुरू करेंगे, नहीं तो फिर सीधा जाएगा। एंड फॉर ईच वी विल इट यील्ड। यहाँ पर मैं बस इतना ही चेक कर रहा हूँ, मैं अहेड ऑफ टाइम इसकी कुछ कैपेसिटी दे सकता हूँ। इट इज पॉसिबल कि यहाँ पर बहुत सारे टाइम्स है जो अभी जीरो है, मतलब ये टाइम हमने यूज ही नहीं किया, बस अपने अपने मेमोरी अलोकेट करके रखी हुई है, बट ये टाइम यूज नहीं हुआ है। दिस आर दोस टाइम्स। सो फॉर दैट दिस कंडीशन हैज बीन एडेड कि इफ द टाइम, इफ वो पोजीशन पे वैल्यू जीरो है तो फिर अगर नहीं है तो ही अपन यील्ड करेंगे, अदरवाइज वी हैव टू इग्नोर बिकॉज दिस डज नॉट एग्जिस्ट फॉर द आउटसाइड वर्ल्ड। फॉर आउटसाइड वर्ल्ड दिस इज ओनली द टेबल। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट। गेट टाइम एट, ये सब सिंपल पीएजी है। अगर तुमको टाइम ith इंडेक्स का फाइंड करना है तो कैसे करोगे, एंड सो एड टाइम और रिमूव टाइम दैट आई हैव सेव्ड फॉर लेटर, बट यहाँ पर एक चीज़ मैंने ऐड करके रखी, इनकेस अगर फ्रीज हो गया हो तो फिर वी कैन थ्रो द एरर कि द डेटा एक्सेस हैज ऑलरेडी बीन फ्रीज्ड। टाइम एक्सेस को फ्रीज करने का एपीआई कुछ करा नहीं है मैंने यहाँ पर, वेरी सिंपल। ओके, गैसेस क्या ऊपर अपन को इटरेट करना है तो फिर सिंपल ही है, राइट। गेट गैस, गेट इंडेक्स, एड एंड रिमूव वो मैंने अभी रखे हुए हैं, आई हैव टू इम्प्लीमेंट दैट, दोज आर द कॉम्प्लेक्स वंस। और फिर फ्रीज करना भी सिंपल ही है, ऑलराइट। अभी गेट लेबल, ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो एंड सी हाउ दिस हैज बीन इम्प्लीमेंटेड, राइट। अभी to understand get json at, we have to first understand get all concentration at. So let's look at that. So from outside you can pass either I want to only observe the existing columns or I want to observe all the columns. There can be two cases. So अभी के लिए हम सिर्फ existing वाले को देख लेते हैं, ऑल के अंदर हम सब कुछ भेज देंगे, सिंपल। तो existing वाले में हम क्या कर रहे हैं, हम सारी गैसेस के ऊपर इटरेट कर रहे हैं। वी नो द रो नंबर, सो व्हाट इज अवर कोड कि हम कॉन्सेंट्रेशन बफर में रो मल्टीप्लाई बाय गैस की लेंथ प्लस गैस, आई कॉमा जे है, सो दिस इज आई, दिस इज जे, आई मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम्स प्लस जे। वेरी सिंपल कोड, हमने वो कॉन्सेंट्रेशन लिया। नाउ हियर्स द थिंग, the first time I'm trying to allocate the data is going to be zero. All the values are going to be zero. For me, if a concentration is zero, I will assume that it is non-existing. And if a concentration is this value, जो मैंने यहाँ पर बना के रखी हुई है, ये एक इम्पॉसिबल कॉन्सेंट्रेशन है कि ऐसी वैल्यू कॉन्सेंट्रेशन की कभी हो ही नहीं सकती। तो मैं फोर्सफुली ये वैल्यू रखूंगा जब मुझे सेंसर में से कॉन्सेंट्रेशन जीरो मिल रहा है, बट अगर जीरो दिखे तो वो अनडिफाइंड है। दैट इज हाउ आई एम अज्यूमिंग फॉर माई डेटा टू बिहेव लाइक, राइट। सो पॉज फॉर अ सेकंड एंड अंडरस्टैंड व्हाट दिस इज। यहाँ पर मुझे कॉन्सेंट्रेशन जो मिला, अगर लेट्स से CO2 का कॉन्सेंट्रेशन मुझे जीरो मिला था, देन आई एम गोइंग टू सेव दिस पर्टिकुलर वैल्यू इन द एरे। अगर CO2 का कॉन्सेंट्रेशन मुझे मिला ही नहीं था, वी सॉ दैट कि कुछ डेटा पॉइंट्स में CO2 है और कुछ डेटा पॉइंट्स में है ही नहीं CO2, इन दैट केस आई एम गोइंग टू स्टोर द वैल्यू जीरो, ऑलराइट। और कुछ केसेस है और बाकी के जितने केसेस है कि जहाँ पर CO2 की वैल्यू 1.3 मिली तो वहाँ पर मैं 1.3 स्टोर करवाता हूँ। सो व्हाट आर वी डूइंग है कि अगर कॉन्सेंट्रेशन जीरो ना हो तो मतलब कॉन्सेंट्रेशन एग्जिस्ट कर रहा है, देन आई एम चेकिंग इफ कॉन्सेंट्रेशन इज जीरो कॉन्सेंट्रेशन वैल्यू which is this one. In that case, I have to yield a concentration of zero. Otherwise, I just yield whatever concentration I got. That is it. Very simple code. In case I want to yield all of the values, not just the existing ones, it is very simple. ये जो केस था उसके अंदर भी अपन yield कर रहे हैं कि if concentration is zero, I will be sending exists false, and then concentration equals zero, and then value equals this. Simple, right? All right. Now let's go to the get all labels at. So ये अपन ने किया था ये वाले रो के लिए कि मुझे ये वाला रो पूरा का पूरा रीड करना है। Now let's talk about मुझे ये वाली रो रीड करनी है, तो उसके लिए क्या करेंगे? तो एज वी रिमेंबर यहाँ पर रोज के अंदर मैं लिख रहा हूँ इंडेक्स। दिस इज नॉट गोइंग टू बी द वैल्यू, दिस इज गोइंग टू बी एन इंडेक्स, एंड दैट इंडेक्स इज गोइंग, और वैल्यू कहीं और दूसरे एरे में स्टोर होगी, उस वैल्यू का इंडेक्स विल टेल मी व्हाट इज द वैल्यू। ओके, यहाँ पर भी वही फॉर्मूला है, आई कॉमा जे, सो आई मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम्स प्लस जे, दैट गिव मी इंडेक्स। नाउ आई एम चेकिंग इफ इंडेक्स इज नॉट जीरो। सो इन दिस केस यहाँ पर कैसा होता है कि लेट्स से मुझे AHME अहमदाबाद मिला, तो मैंने उसको कोई एरे पे स्टोर कर दिया था, उस एरे में से मुझे एक इंडेक्स मिला, और मैं क्या स्टोर कर रहा हूँ, आई प्लस वन। दिस इज वॉट आई एम स्टोरिंग। दिस इज नॉट सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेशन बफर, दिस इज सपोज टू बी वैल्यू, वैल्यू इंडेक्स बफर, ऑलराइट। तो अहमदाबाद को मैं एक यूनिक यूनिक स्ट्रिंग वाले एरे के अंदर डाल रहा हूँ, उसमें से मुझे अहमदाबाद का इंडेक्स मिलेगा कि ये एरे में अहमदाबाद का इंडेक्स क्या है, आई, और फिर उसको मैं आई प्लस वन यहाँ पर स्टोर करवा रहा हूँ। तो लेट्स से ऐसा हुआ कि लोकेशन जो है, लोकेशन की वैल्यू अहमदाबाद थी, बट किसी और के अंदर लोकेशन अनडिफाइंड आया, तो मैं ये करूँगा ही नहीं, ना ही ये चीज़ होगी, इंडेक्स भी नहीं मिलेगा, तो मैं स्टोर क्या करवाऊंगा, आई विल स्टोर जीरो, ऑलराइट। आई एम गोइंग टू स्टोर जीरो, सो आई विल जस्ट चेक इफ इंडेक्स इज जीरो, is not supposed to be zero, only then I'm going to yield. In that case, I'm going to get the index of LVI minus 1, right? LVI minus 1, correct? And then I'm going to get the value, and then I'm going to yield that value. Perfect. Here is also going to be LVI. तो यहाँ पर सिंपल ये, जब अगर जीरो होगा तो उसको भी अपन, वो केस को भी अपन ने yield करवा दिया. Now here this is one of the bug. तो when we do yield, it does not behave like a return statement. Right. We will have to do this here. Else.
ग्रेट. सो नाउ यू अंडरस्टैंड. तो ये दोनों फंक्शंस को समझ में आ गए. दिस टू फंक्शंस हेल्प अस गेट इटरेशन ओवर द ith रो फॉर टू डिफरेंट टेबल. ये वाला फंक्शन कुछ नहीं कर रहा है. इट इज जस्ट क्रिएटिंग एन एरे ऑफ डी एन एरे ऑफ एस एंड इट हैज स्टोर्ड द टाइम स्टैम्प फॉर दैट ith रो. And then we are trying to loop over the concentrations, and then for the key value pairs, and then we are going to return the object in this form. We can also do something like object dot assign. This would be much better. Great. Now let's go to the next one. To access a direct cell, to if you want to access a cell directly, तो यहाँ पर जो हमने किया था वही फॉर्मूला है. यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन में हमने जो किया था, हाँ एग्जैक्ट वही फॉर्मूला है. I comma j, I into number of columns plus j. This will get us concentration. If concentration is zero, then it does not exist. If concentration is zero concentration value, then it does exist, but the concentration is zero. Otherwise, we will just return it. The reason for doing this kind of thing where I'm putting zero, see, I could do something like नॉन एग्जिस्टिंग को ये वाली वैल्यू दे दूं, कोई यूनिक वैल्यू दे दूं, और सारी वैल्यूज को बाय डिफॉल्ट वो यूनिक वैल्यू पे रखूं. बट देन अगेन माय सेंसर आर हार्डली रेयरली गोइंग टू एवर गिव मी अ वैल्यू ऑफ जीरो. दे आर ऑलवेज गोइंग टू गिव मी सम वैल्यू. मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज गोइंग टू बी पॉजिटिव. फॉर सम पैरामीटर्स लाइक टेंपरेचर इट इज गोइंग टू बी समटाइम्स नेगेटिव, बट it is always going to be a non-zero value. So it is just easier for me to not use some another value. बस वही रीजन है, और कुछ रीजन नहीं है. यहाँ पर आई कुड पुट कि पूरा का पूरा एरे मैं बाय डिफॉल्ट -1 के अंदर स्टार्ट कराऊँ और उसके बाद मैं एक एक करके सारी वैल्यूज असाइन करूँ. बट देयर इज ऑल्सो एन ईजियर वर्जन जहाँ पर मैं पूरे इंडेक्सेस को +1 करके रखूँ. दैट इज ऑल्सो ईजी फॉर मी. आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वैल्यू 1. यहाँ पर गेट में कुछ नहीं कर रहे, बस सिंपली वी आर ट्राइंग टू गेट इट. यहाँ पर सेट में आई एम जस्ट चेकिंग अगर वो जीरो इंडेक्स को सेट करवा रहा है, देन आई हैव टू सेट इट द जीरो कंसंट्रेशन वैल्यू, अदरवाइज आई कैन जस्ट सेट इट टू वैल्यू. अगर वो डिलीट करने का ट्राई कर रहा है, जस्ट हैव टू सेट इट टू जीरो, सिंपल. अगर वो वैल्यू को गेट कर रहा है विच इज की वैल्यू पैर लेबल्स, इन दैट केस अगेन वही चीज, आई इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स प्लस जे. उससे मुझे इंडेक्स मिला. अगर इंडेक्स की वैल्यू जीरो तो मैं एग्जिस्ट फॉल्स भेज दूंगा. अगर इंडेक्स की कुछ वैल्यू है तो -1 करके मैं लेबल गेट करूंगा. हियर आल्सो दिस इज रॉन्ग, एल बी आई इट शुड बी. ग्रेट. अभी जब सेट करने की बारी आएगी, द सेम थिंग, आई एम गोइंग टू टेक द वैल्यू, बट हियर मैं यहाँ पर चेक करूंगा कि क्या ये वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी है. यहाँ पर रिवर्स मैपिंग मैंने रखा हुआ है, तो फ्रॉम दैट आई कैन गेट द इंडेक्स ऑफ दैट वैल्यू. सो फॉर अस एन इंडेक्स इज एलवीआई -1. दैट्स व्हाई आई हैव नेम्ड द वेरिएबल एलवीआई अंडरस्कोर -1 व्हिच रिप्रेजेंट्स एलवीआई -1. अगर एलवीआई -1 अनडिफाइंड है तो उसका मतलब हुआ कि आई हैव टू पुश दिस न्यू वैल्यू. दिस इज अ न्यू यूनिक वैल्यू, आई हैव टू पुश इट. और उसका जो भी इंडेक्स होगा आई विल गेट इट एंड आई विल स्टोर इट इन एलवीआई -1. और उसके बाद उसको मैं मैप में सेट करा दूंगा फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस. एंड देन अगेन मैं उसको सेट करवा दूंगा +1 करके, राइट. इन केस आई वांट टू डिलीट अ वैल्यू, इट्स सिंपल, आई जस्ट पुट इट जीरो. नाउ यस यू कैन से कि अगर कोई भी वैल्यू को यूज नहीं कर रहा है, आई कैन आल्सो डिलीट इट फ्रॉम द एरे, बट लेट इट बी. हार्डली दैट इज गोइंग टू बी अ केस. Let it be. I'm not trying to create an API for the whole world. They can create their own thing. I'm just trying to create it for my company, and this is good enough for my company. So in this version, I just explained you how typically we are doing everything. In the next video, I'm going to show you कि ये add, remove इसकी functionality क्या करेगी. Behind the scene अपने को basically इतना ही करना है कि let's say if you are trying to add a new row to this, right? If you are trying to add a new, this is a brand new row. तो क्या होगा, तुम्हारा जितना existing data होगा उसको तुम्हें दो पार्ट्स में लेना पड़ेगा. This is how much you will have. और फिर you have to create a new buffer. सिंस हमारा सारा डेटा ऐसे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ये और ये पूरा का पूरा एरे है हमारा. तो यहाँ पर तुम ऐसे इन्फर कर सकते हो, जब हम नई रो ऐड कर रहे हैं तो क्या हो रहा है कि ये टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया. दिस इज द बिफोर पार्ट एंड दिस इज द आफ्टर पार्ट. इसके मिड के अंदर मुझे एक नई रो ऐड करनी है. बेसिकली हम इतना कर रहे हैं. तो व्हाट विल हैपन इज कि मुझे नाउ टू फर्स्ट चेक कि व्हाट इफ आई ऑलरेडी हैव अ कैपेसिटी टू हैंडल. हम सबसे पहले चेक करेंगे कि हमारे पास ऑलरेडी नया रो लेने की कैपेसिटी हो. तो व्हाट वी हैव टू डू इज कि ये जो पार्ट है हम इसको वन रो शिफ्ट कर देंगे और यहाँ पर हमारी नई रो ऐड करेगा, नई रो का कंटेंट ऐड करेगा. इफ वी डू नॉट हैव द स्पेस टू डू दिस, then we will have to create a new thing where you have the space. We will have to copy all this content over here. We will have to create a new row over there, and then we have to copy all the remaining content there, right? That's how it is going to be. When we want to add a row, this is how much simple it is. But when we want to add a column, now that is where the difficulties start. क्योंकि row को add करना बहुत simple है, columns को add करना difficult हो जाएगा. Because then when we have a column over here, हमारी row ऐसी दिख रही है. This is our row is for us. And then the next row is here, next row is here, next row is here, right? अभी if I'm trying to add a new column, I have to shift every single row a little bit here. See, I have to shift this. I have to add one cell space over here. I have to shift this one two cells away. मैं वापस दिखाता हूँ क्या होगा. तो इसको यहाँ पर मुझे एक सेल डालना पड़ेगा, नया कॉलम आया है तो एक सेल की जगह छोड़नी पड़ेगी. यहाँ पर एक सेल ऑलरेडी ओवरलैप हो गया तो इधर मुझे दो सेल की जगह छोड़नी पड़ेगी. यहाँ पर दो सेल ऑलरेडी ओवरलैप हो गए तो इधर मुझे तीन सेल की जगह छोड़नी पड़ेगी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो एडिंग अ न्यू कॉलम इज इक्विवेलेंट ऑफ क्रिएटिंग अ न्यू कॉपी एंटायरली. दैट वुड बी मच मोर ईजियर फॉर मी टू डू. कि ये चीज़ भले यहाँ पर रही, मैं इसको यहाँ पर डाल दूंगा और फिर इसको यहाँ पर और फिर इसको यहाँ पर, इसको यहाँ पर, एंड देन आई कैन जस्ट ऐड ऑन दिस सेल फॉर दिस वन. सेम थिंग गोज फॉर दिस रो ऑल्सो. मैं ये सेल इसके अंदर इंक्लूड कर दूंगा बाद में.
तो कॉलम को ऐड करना थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, रो को ऐड करना ईजी है। तो ये चीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि ये कैसे करेंगे हम। फाइनली फोर्थ वीडियो में हम देखेंगे कि इसका यूज़ कैसा होगा और कितना परफॉर्मेंस बूस्ट होगा। वी विल ट्राई टू कंपेयर इट विद द जेसन वर्जन, कंपेयरिंग विद दिस वर्जन दैट वी जस्ट क्रिएटेड। ऑलराइट, तो ऑल द बेस्ट गाइस, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।